go through this PPTs and all. What I want is, okay, anyway, one most important thing, some students have tried to join this class using other email IDs, but I will not allow any other email IDs to join this class because I have to make every time okay for entry. So you by default you have to use RTU email ID. So all of your communication should be using RTU email ID only because you have been given an email ID by the institute and you should be using that. So if you will go through some other email ID, I am not going to answer any queries over email and other means. Okay, so let's start. You know how many number systems you know? You might have, sorry, you might have gone through our. So decimal number system we all know, correct? So you have digits like 0, 1, 2, 3 and dot up to 9. So why it is called decimal system? Because you have 10 different digits and using this we can create numbers. From any number we can generate using these digits, not only positive numbers but also negative numbers. For example, you can have from minus 10, a range you can start from minus 10 to plus 10. So and numbers like 256,000 and so on. Any number which you want to generate, you can generate using decimal number systems. So but is it enough when you talk about computer? So a decimal number is a way we have learned from starting, but to get an idea about other number systems we should have, sorry, okay, we have binary. So why it is called binary? Because we have only two choices, 0 and 1. So all the numbers which you are going to create will be using only two digits, two different digits, which is nothing but 0 and 1s. And then we have octal numbers. So what other numbers we have in octal? So octal we have from 0 to 7. So 8 different possible digits, and all numbers can be created positive, negative using the numbers digits 0 to 7. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then you have one more which is called hexadecimal. So hexadecimal we have starting with 0, then 1, then 2, up to, so up to 9 it's okay. So you have 10 numbers from 0 to 9. Then we have a is for 10, b is for 11 and so on, c, d, E and F. So you can see from 0 to F, A is for 10, B is for 11, 12, 13, 14, 15. So 0 to 15, these are the digits of hexadecimal number representation. Okay. So whatever number you want to represent, you can represent using 0 to F. So let's see how we can write numbers and how it is being represented using these different number representation systems, and then we will see the arithmetics of all the number representations separately. Then come to this slide. So you can see what is the most important thing is uh, radix. What radix says is, like I said, binary means radix is equal to 2, so r equal to 2. So then we will discuss about complements, to how to get complements of a given number and why complements are so necessary to study. Then r's complements, r minus 2 complements are possible. Actually you can have more than, but there are two mainly components which can be used is, sorry, complements can be used is, any radix will be given and then it's r minus 1's complement and r's complement. So for example, for decimal number system we will be learning 10's complement and 9's complement. For binary we will be having 2's complement and 1's complement and so on. Then we will see subtraction, and then when you go for subtraction you will see how these complement help to subtract two numbers. Okay, so let's see.
So what is the meaning of radix? Now let's see an example of a decimal number 7392. So 7392, but in actual, how do you represent this number? 7392 में आपने क्या करा, हमने जो रेडिक्स की पोजिशनल वैल्यू थी ईच डिजिट की, हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया. बट एक्चुअल में क्या होता है कि हम हर पोजीशन की वैल्यू को लिखते हैं. तो स्टार्ट पोजीशन कहाँ से होता है? अगर राइट मोस्ट बिट क्या है यहाँ पे अपना 2, इसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट. मतलब इस पोजीशन की जो वैल्यू होती है सबसे कम होती है, उससे थोड़ी सी ज्यादा जब आप लेफ्ट की तरफ ग्रो करते हो तो पोजीशनल वैल्यू बढ़ती जाती है. तो अगर बचपन में याद हो, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो याद रखते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार. इफ आई तो अदरवाइज वंस प्लेस, 10th प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस एंड सो ऑन, आप इस तरह से पढ़ते हो. तो 7392 को आप कैसे लिख सकते हो? क्योंकि ये कौन सा प्लेस है? 1000. 7 इंटू 10 टू द पावर 3. 1000 को आप 10 टू द पावर 3 आसानी से लिखते हो, क्योंकि ये रेडिक्स क्या है? ये डेसिमल नंबर का आर यानी रेडिक्स वैल्यू इज इक्वल टू 10. सो 10 की पावर 3 हमने लिख दिया. फिर 3 की तरफ आई तो ये 100th प्लेस था, तो उस जो भी डिजिट था उसको 100 से गुना कर दिया, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि ये 10th प्लेस था तो 10 की पावर 1 रेडिक्स की पावर में लिखते हैं. और ये क्या था? यूनिट प्लेस था. यूनिट प्लेस का मतलब 1, तो 1 के बदले आप 10 की पावर 0 लिखो. इसी तरह अगर बाइनरी नंबर होता 0 1 1 1 0 करके कुछ लिखा हुआ, तो हम अकॉर्डिंगली उसको 2 के रेडिक्स में पावर के टर्म में लिख सकते थे. ठीक है. सो वी हैव, तो 7392 को आपने इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो आप. अब ये जरूरी क्यों है समझना? क्योंकि जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है ना चीजों को, वो इस तरह से करता है. वो 7392 जो आप एंट्री करते हो तो कंप्यूटर के जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें स्टोर वो इस तरह से होता है. ठीक है. देन वी हैव 7392. अगेन इट्स ए डेसिमल नंबर 7392. सो हाउ यू राइट इट? So see, before decimal, so left part of decimal you have only one digit, so it's a unit place. So you have multiplied 7 into 1, so 1 is nothing but 10 to the power 0. But whenever you go toward the right side of decimal points, you have to do a -1, 10 to the power -1, 10 to the power -2, and 10 to the power -3. And the more digits you have, you have to grow in the negative side. 10's power will be growing at the negative side. So 10 minus 1, 3 into 10 minus 1, 9 into 10 minus 2, plus 2 into 10 to the power -3. So this number can be represented using this. This is called radix representation of a given decimal number. So radix की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 10 or equal to 10. So ये तो बस आपने रिप्रेजेंट किया नंबर को. तो अगर इसको जनरलाइज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिजिट जो था, अगर रेडिक्स की वैल्यू से हमेशा छोटी होती है, जैसे डेसिमल में हमारी डिजिट का रेंज क्या था? 0 to 9. ओके. सो आपने देखा कि जब आप ये डिजिट है, AI consider it as a digit of your number system. So when you are talking about decimal number system, so you will be varying from 0, equal sign will be from the 0 side, but रेडिक्स से हमेशा एक कम होती है अपने पास. 0 से 9 sufficient for 10 different digits. So whenever you have r equal to 10, your digits will be 0 to 9. In the same fashion, we have r equal to 2 for a binary number representation. Your AI will be from 0 and 1. For octal, AI will vary from the set of 0 to 7. For hexadecimal, we have 0 to F and so on. और उसी तरह नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिखा? याद करो, यह डेसिमल जहां से शुरू होता है वहां से माइनस शुरू कर देते हैं, r-1. 0 के बाद डेसिमल के राइट हैंड पे अपन डेसिमल या पॉइंट कहता हूं यहाँ पे, उससे ज्यादा सापेक्ष रहेगा. ठीक है. तो कॉमन रेडिसेस आप यहाँ देख सकते हो कि बाइनरी, ऑक्टल, देन डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. So these are the common radices value you have, and all the numbers we will be discussing either will be a binary number. So our main focus will be with binary, because you know octal. If you don't know octal, we will let you know how to convert a binary number into octal, or octal into decimal, or hexadecimal into decimal, and vice versa. So all transformation we will discuss. So next we have, see the table. So when you have r equal to 10, as I said, this is a decimal number systems. The digits possible are 1 from 0 to
9 only, but the numbers examples you can see 0, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 and all. So whatever number you can write it here. For binary, since I have not discussed the binary, I will skip this table actually, because if you don't know binary, if you don't know octal, there is no meaning of discussing this. First let me just have this table in your mind and we will discuss. ओके ये एक्चुअली क्या है कि अपने को हेक्साडेसिमल नंबर तक दिखाना था, तो सारे नंबर सिस्टम्स में कैसे जैसे कि डेसिमल के सापेक्ष में ही हम सबको देखते हैं, बिकॉज वी नो डेसिमल फ्रॉम द हार्ट, and if you don't know binary then you have to see the conversion here. So 10 can be written in binary at 1010. In octal you have to write 12 for 10, so it is 10 actually, but in octal it is written as 12. And for 12 in hexadecimal we write A. So 12 in octal, which is 10 in decimal, will be written as A in hexadecimal, and so on. So this transformation, I will let you know how these transformations can be done. Okay, so see, any number will be given in this set of parentheses, and the radix will always given as a subscript of the given number. So whenever if number written as like this, so whatever the subscript will be, so it is asking you to read it as a radix 5. So this number is given as radix 5 number. But then there is a problem with this number. When your subscript or is 5, means r equal to 5, so possible digits will be only 0 to 4, so this number should be incorrect. For hexadecimal we have 0 to f, so you cannot have z, you cannot have h, so but you can see f75c point b, which is a correct number. So if a subscript is equal to 5, you cannot have a digit equal to 5 in the number. As you can see, decimal 0 to 9 only possible, binary 0 and 1s only, octal 0 to 7 maximum, there will be no 8 in octal number system, and hexadecimal up to f only. So it is wrong written 0.5 here. Anyway, okay, before I go to convert from decimal to binary, let me know, do you have idea, any prior information, how many of you have an idea how to convert a decimal number into a binary? Let me know, at least if you know 4 or 5 persons know this. If you don't know, it's too good, because we can learn. If you don't know anything, it's okay. Okay, let's see with an example. So what we are going to learn is how to convert a given okay, let me I have just started using this electronic pad for writing, so I will need some time to get used to. Anyway, so we are learning here how to convert decimal to binary. I'm sorry, see here, it is not decimal to binary. Okay, so let's have an example. Let's say pick a number, let it be 15. So see, I am writing with a proper notation. So 15, so here r is equal to 10. So what are the possible digits? So digits ai से अगर मैं लिखूं तो we have from 0 to 9 only. Nothing a b c d, you cannot use anything for decimal number system, correct? We know that. So how to convert it in a binary number? So let's write here 15, and you know the division procedure which you have learned in your childhood. So write 2 here, start dividing 15. So how many times? 7 times. 14. So is there anything remaining? Yeah, remaining is 1. Again, if there is a odd number, you always will be having a reminder as 1.
So again divide it with 2, so it will go for 3 times and you have a remainder as 1. Then again it is greater than 2, you have to divide one more time, so 1 times and there will be a remainder as 1. So it is 1 here, so it is less than 2, you don't need to divide it again, and your answer is ready. Now read it from bottom to top. This way you need to read. So 15 in decimal will be equal to what? So all are ones. So 1 from the bottom, then next, then next, then next, and then you write here 2. So this is your binary equivalent of the given number 15. Okay, so we are reading from bottom to top. So how? No, let's confirm it whether it is actually a 15 or not, because I have written, you should not agree with me. So बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे अपन पोजिशनल वैल्यू की मदद से, और डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा. तो हम अब डेसिमल में करने की सोच रहे हैं कि यहाँ पे वो क्या होगा डेसिमल में. तो ये जो आपका नंबर है इसको फिर से लिख लीजिए आप. सो नंबर अपना है 1111. अब इसको रेडिक्स जो हमने रिप्रेजेंटेशन में लिखा था, तो कीप रिमेंबर फॉर दिस नंबर रेडिक्स इज r विच इज इक्वल टू 2, और हमने कहा था कि यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और वो डेसिमल में. तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0 है. तो ऐसा करते हैं, एक बार फिर से नंबर लिखते हैं, 1 और 1. तो ये वाला पोजीशन है 2 की पावर 0 वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन है 2 की पावर 1 वाला पोजीशन. This position is for 2 raised to 2. This position for 2 raised to 4. Up what we have done with the decimal numbers, same thing you have to do. So you know it is 1, then 2, then 4, then power 3 आएगी ना सर? yes. तो 2 की पावर 3 होगा ना? Yes, you are right. It should be 3. Let me just rub it. Okay. Thanks for being attentive in the class, but because most online classes are just it should be picked up. Yeah. Okay. So 3. So it is 1's position, then 2's position, then 4 position, then 8. So आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. किससे? पहला 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 2 की पावर 3 यानी 8 से, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4 से, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 का मतलब 2, प्लस 1 इंटू 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1. तो ये इक्विवेलेंट कितना हो गया? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 equal to 15. So can we fill 15 here now? Is it okay? Yes sir. Okay. Yes, sir. Any doubt to anyone? Because we just have learned how to convert a decimal number into binary and a binary number into decimal. Both things together we have learned. So if there is any doubt, please ask. Otherwise I will give you a task. सर ये हाँ बताओ. सर ये r इक्वल्स टू 10 वाला नहीं समझ में आया. ये नंबर जो दिया हुआ है ना, ये बाइनरी में, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, तो इस रेडिक्स को बोलते हैं, रेडिक्स के बदले में r यूज कर रहा हूँ. एक्चुअली जो डेसिमल नंबर सिस्टम को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो, नंबर सिस्टम फॉर विच रेडिक्स इज इक्वल टू 10. ओके, तो यही r इक्वल टू 10 उस रेडिक्स के बदले लिखा गया, और कुछ नहीं है. ये यहाँ पे r लिख सकते थे आप और r की वैल्यू 10 लिख सकते थे, बट यहाँ मैंने डायरेक्टली 10 लिख दिया, इसलिए आपको ये समझ में आ गया कि ये एक डेसिमल नंबर है जो दिया हुआ है. ये नंबर ऑक्टल भी हो सकता था, क्योंकि ऑक्टल में डिजिट जो है 0 टू लेके 7 तक पॉसिबल है. तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूं
तो ये भी एक सही नंबर है, लेकिन इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट 15 नहीं होगी तब शायद ये कुछ और हो सकता है। एक्चुअली ये 13 होगा तब। तो but we will go for octal, but just be with me. I will. Okay, so if you have understood this, R से कंफ्यूज मत हो, ये जस्ट ये बता रहा है कि आपकी रेडिक्स की जो वैल्यू है वो आपका नंबर सिस्टम है। जब आपने कहा R इक्वल टू 2, इसका मतलब आप बाइनरी नंबर की बात कर रहे हो, R इक्वल टू 8 का मतलब ऑक्टल नंबर की बात कर रहे हो, 16 का मतलब आप हेक्साडेसिमल, और 10 का मतलब आप डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बाइनरी के लिए हमने 2 लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब बाइनरी के लिए R इक्वल टू 2 होती है, यानी रेडिक्स की वैल्यू 2 होती है। जस्ट अब सर जैसा अपन ने इसमें सर ये ऑड नंबर था 15, तो अपन ने इवन लिया, तो अगर सर इसमें इवन होता तो अपन इसमें यहाँ पर ऑड लेते। नहीं, ऑड इवन ये समझ में नहीं आया, क्या बता रहे हो, फिर से एक बार नहीं बोलो। सर, जैसा आपने सर अभी ये 15 लिया तो अपन ने इसको है ना 2 से लिया। अब सर यहाँ अपन मतलब 16 होता तो अपन मतलब 3 से करते ताकि नहीं 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 नहीं, 3 से क्यों करते यार, कन्वर्ट कर रहे हो बाइनरी में तो 2 से भाग दोगे। नहीं सर, वो नहीं सर, फिर वो रिमाइंडर तो सर फिर 0 आ जाएगा ना सर। 0 आ जाएगा तो ठीक है, एक एग्जांपल अभी इवन से ले लेते हैं, फिर समझते हैं इस चीज को, ठीक है। ये है समझ सर। में आया ना? तो हाँ सर, ये इसको समझ गया। आप अगर लिख रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, लेट्स गो फॉर Yes, sir. a number which is even. You don't have any confusion, I know. So let's go. Let's say we have a number 16 in decimal, and we have to find its equivalent binary. So मैंने क्या कहा था कि जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना उससे भाग देना है, ठीक है। डेसिमल की बात सिर्फ हो रही है, जब डेसिमल को कन्वर्ट करना हो किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में तो उस नंबर के रेडिक्स से भाग देनी। बाइनरी की रेडिक्स वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो 2 से ही भाग आप लगाओगे। तो 2 8 times, so there will be no remainder, correct? So again you have 8 which is greater than 2, so again divide with 2, so 4 times, there will be no remainder, so it's a 0. Again 4 is greater than 2, you have to divide with 2, so 2 times 0, so 2 is still equal or equal than 2, so you have to divide one more time, so now one at one time, and here you have to write 0. Now as I said, you have to read from bottom to top for your answer. So what you are reading when you are starting from bottom, 1, then 0, then 0, then 0, then 0. So it is the binary equivalent number for your 16. So for 16 you can say you found the answer as 1 4 times 0. Now let's verify it whether it is a correct 16 or not. So if you remember, I said you this is 1's position, this is 2's position, this is 4's position, and this is 8, and this is 16 position, correct? अदरवाइज इसको आप इस तरह पढ़ लो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 1 is to 2 की पावर 4, बाकी तो सब कुछ 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत? So it is 1 is to 16, so your answer is 16 which is equivalent in 10. तो ये अपन 16 पा गए, सही है? Yes, sir. Now tell me the one who has the doubt regarding any odd or even number. No, don't forget about odd or even. Whatever number you have been given, just consider that number only. अगर मैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे 2 से डिवाइड करके रिकॉर्ड करना है रिमाइंडर को, और रिमाइंडर को हम बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर चाहे वो नंबर ऑड हो इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस, मैंने ये आपको छोटा एग्जांपल लिया, आप 256 के लिए भी कर सकते हो। सो इफ यू हैव गॉट दिस, let me know. I am putting a question for all of you, so let me do it for 161. So 161, I have given you the decimal number, find the equivalent binary number. Just spend 2-3 minutes and let me know the answers.
सर 10100001. Okay, just a second. Let other people answer. Meanwhile, I will note your answer. यस सर यही आ रहा है 10 Yeah, please tell the answer again. 10001 1 10100001. 0 0 0 and 1. Is it correct? यस सर Yes, sir. 10 फिर 1 फिर 4 बार 0 फिर 1. Okay. Okay, let's verify it whether it is correct or not. So 101, 4 times 0 and 1, you say it as 161. Okay. So let's say this position will be called as 2 to the power 0 means 1. This position will be called as 2 to the power 1 means 2. So this position 2 to the power 2 4. इसके बाद आप दो गुना करते जाओ. 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 और 128. ठीक है, जहां जहां 1 है उन सब पोजीशन को जोड़ दो. अगर 161 आ रहा है तो आप सही हो. सो 1 करने के लिए ना अपना, अगर अपन ने गलत किया है या सही किया है, क्या? ये प्रोसेस तो रीचेक करने के लिए है ना. बिल्कुल, रीचेक करेंगे तभी तो तुम कह पाओगे कि आंसर सही है तुम्हारा या गलत. तो 128 प्लस 32 सही है कितना सर। हुआ? 160. 160 प्लस ये 161. तो आंसर सही है. जिनका भी ये आंसर आ रहा है इसका मतलब सही है आपका आंसर. ओके सर. Okay, now I will give you a binary number and let me know the decimal equivalent. The number is 1010001 1 and 1. So this is binary number given to you, and find its decimal equivalent. Sir, 167. सर 167. Okay, some more answers should come. Yes, sir, 167. 167 यस सर 167 Okay, good. So those who are getting 167, anyway, you can see the length of the numbers is the same. So here क्या हुआ? 128 132 तो जुड़ के 160 था ही, प्लस ये 4 प्लस 2 प्लस 1 7 बन गया. तो your answer is 167, which is correct. Now we will go for some fractional numbers. Whenever you have given a fraction, let's say 16.5 in decimal, sorry, it should be can you find the equivalent binary? Sir, Yes. 1000.1.
Okay, just let me record it. Yeah, 1. 1 4 times 0 Okay, 0.1. 0.1. Yeah. Okay, let's wait for some more answers. Meanwhile, you can work with 16.6. So if you have answer for 16.5, you go with 16.6 and let me know the answer. No answers. Only one student got the idea of how to convert it decimal part. Okay, anyway, so let me explain it. So you have learned that how you convert the 16 from decimal into binary as 1 and 4 times 0. So I hope no one has doubt with a whole number, correct? Everyone knows it. So let's go for some other part which is decimal part. So decimal में अपने पास क्या है 0.5 है, करेक्ट? तो इस नंबर को आप ऐसे समझ सकते हो 16.0.5, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? हम सारे 16 को 16.0.5 लिख सकते हैं। ओके, तो जब आपके पास 0.5 डेसिमल में दिया रहे और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से, और यहाँ पे लिखना है उसका आंसर 1.0। तो जब भी यहाँ पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो आपका काम खत्म है, यानी कि होल नंबर इधर मिल रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अपने को 0 मिल रहा है, तो आगे कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए आप, यानी कि जो आंसर आपके पास था ऑलरेडी 1000 फॉर 16, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और इस 1 को यहाँ पे लिख दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाता है बाइनरी में। बट ओके, ये आपका आंसर है और सही भी है। क्यों सही है? इसको वेरीफाई करना चाहो तो आप ऐसे करो, याद करो, इसको मैंने कहा कि 2 की पावर 0 यानी 1 पोजीशन, इसको कहा था 2 की पोजीशन, इसको 4 की, इसको 8 की, इसको 16 की। तो ये नंबर 16 हो रहा है। पॉइंट के बाद मैंने क्या किया था? तो माइनस, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 कितना होता है? यानी कि ये तो 16 हो गया, प्लस में पॉइंट के बाद 1 है और गुना में क्या है 1/2। 2 की पावर 1 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। सो एक में गुना हुआ 0.5, तो 16 प्लस 0.5 ही हुआ और इक्विवेलेंट टू हो गया 16.5 के, जो कि आपका आंसर है और ये करेक्ट है। बट नाउ लेट्स सी, एक्चुअली मुझे दूसरा ही देना चाहिए था आपको, 0.5 वाला नहीं देना चाहिए था। 8.33 का करके बताओ। 8.33 मैंने डेसिमल में दिया आपको। सर सॉरी, वॉइस सही नहीं आ रही सर। क्या क्या बोला? वो लिखा नहीं था। नहीं सर वॉइस सही नहीं आ रही थी सर, अब सही आ रही। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर बनाओ आप लोग अभी। ये क्या है? The 1000.01. 1000.01, let's note it. 10000.01 in binary. So let's wait for some more answers. Meanwhile, let me check. Okay.
Okay, anyone answering? Otherwise we will go for explanation. So anyway, how 8 becomes 100, let's revisit the process once again. So most of you will know that because you have to convert in binary, so you have to divide with 2. So 4 times 8, you have to write 0 here. So again 2 times 2, so you have a 0 reminder here. So 1 times 2, you have a 0 reminder here. Bottom to up you have to read, so you will record your answer as 1000 in binary, sorry, so which is equivalent to 8 in decimal. Now we have 0.33 with us, or 0.33, you can say. What I told you, for point just start multiplying, so it becomes 0.66. So it is a 0 will be recorded here. So now 0.66 into 2, so some rational numbers will come, then it will not stop. So you have to stop after 2-3 digits, or sometimes in question you will be given that up to 3 to 4 digits answer. So accordingly you should behave. So it is 132, but point here, so 1.32, so 1 comes here. Now 0.32 into 2, which is 0.64. Now 0.64 into 2, so 128. So 0.28 into 2, so 0.56. Here 0 comes. So 66, 132, 32, 64, 28. So some more digits if you want. After the decimal point you can grow. So 112, 1.12. So the thing is not going to stop, I think. So we will stop somewhere. So it is 0.24. So it okay. So इधर हमें क्या करना है, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड पे आपको आ रहा है वो उसको रिकॉर्ड करना है. तो आप यहाँ पे 8 के लिए 100 तो लिख ही दें, पॉइंट के बाद में 0 1 0 1 0 1, और लास्ट 0 को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है अगर राइट हैंड पे हो सबसे लास्ट में. तो ये अगर भूल भी जाओ तो आपका जो इक्विवेलेंट नंबर अप टू 5 डिजिट ये रहा, क्योंकि 0.33 जो है वो एक इरेशनल नंबर है. एक्सक्यूज, हेलो, हाँ बताइए. नहीं हाथ से लिख के उनसे मंगवाइए. हाँ, और उसको सुरक्षित भी रखेंगे. कॉलेज जब खुलेगा तो उनको हार्ड कॉपी भी जमा करनी है. Okay, did you get the idea how we are converting fractional part into the binary system? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so once you got the idea, it's very nice. Let me put you a question so that you can work on it now only. So let me give you 11011 0.1001 in binary. Let me know equivalent decimal number. I will wait for your answers. सर एक चीज पूछनी थी सर. हाँ बताओ. सर मैं कह रहा था आपने कल क्लासेस का लिंक बोला था कि मतलब 12:45 पे क्लास स्टार्ट होगी लेकिन जल्दी हो गई. हाँ, मैंने आज मेरे से गलती हो गई कि मैंने 1 घंटे पहले 11:45 में स्टार्ट कर दिया. ठीक है. हाँ तो सर हमें पता नहीं था सर, एक्चुअली हमारी क्लास भी मिस हो गई, हमें पता भी नहीं लगा. कोई नहीं, अपन इसको रिविजिट कर लेंगे. बाय द वे रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया था इस क्लास को जब से इम्पोर्टेंट हमने डिस्कशन शुरू करा.
तो ये आपको रिकॉर्डिंग गूगल क्लासरूम पे दिख जाएगी, तो वहां से देख सकते हो इसको। ठीक है सर। वैसे तो सर ऑन टाइम पर होगी ना जो आपने टाइम बताया है क्लास? हाँ हाँ, 12:45 से ही नेक्स्ट थर्सडे की क्लास होगी और हमेशा टाइम पे ही लेंगे, ठीक है। आज ठीक है। एक्चुअली क्या है, तो मैं पहली बार तुम लोगों से मिलना था तो मैंने जल्दीबाजी कर दी अपने एंड से, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इट्स टोटली माय फॉल्ट, सॉरी फॉर इट। ओके सर। Sir, 54.56. Okay, so one answer came as 54.5625. 54.5625. 25. Okay. The Okay. 56.5625. Yeah. 56. Yes, sir. 56.5625. 5625. 5625. Okay. So 54.5. 54.56. ओके, अब देखो एक ऑब्जर्वेशन जो मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूं उस पे गौर करना कि अगर ये जो डेसिमल के ठीक पहले यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होल नंबर की साइड पे अगर 0 है तो इट विल ऑलवेज एन इवन नंबर, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आप डायरेक्ट, अगर कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिले तो आप डायरेक्टली अगर यहाँ 0 हो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ऑप्शंस दिए हुए में कोई और नंबर दिया हो तो आप उसको डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। एनीवे both of your answers are 54 and 56 which is an even number. Let's check it. तो मैं सबसे आसान तरीका वही है मेरा कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये पोजीशन कौन सा, ये 1 का पोजीशन है, ये 2 का है, ये 4 का है, ये 8 का है, ये 16 का है और ये 32 का है। और जहां जहां पे 1 है उसको मैं जोड़ देता हूँ। तो 32 प्लस 16 48 प्लस 4 52 प्लस 2 54। तो जो लोग 56 आंसर दिए हैं कृपया अपने प्रोसेस को रिविजिट करें। 56 को डिस्कार्ड किया जाता है। सो आपका आंसर 32 प्लस 16 48, 4 52, 2 54, 54 आ रहा है होल नंबर की साइड पे। अब आते हैं पॉइंट के बाद वाले टर्म पे, तो उसके लिए मुझे क्या है थोड़ा सा इरेजर की जरूरत पड़ेगी जिससे मैं अपने लिए जगह बना सकूं। किसी को आइडिया है क्या इरेजर का साइज कैसे बढ़ाते हैं? कंट्रोल प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस प्लस से नहीं बढ़ रहा है यार, मैं भी पहले बढ़ाता था अभी नहीं काम कर रहा, पता नहीं क्यों। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सर बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए एक बार। बड़े कंट्रोल के बाद नहीं, बैक स्पेस के नीचे एंटर है ना, एंटर से जस्ट पहले। नहीं मैं समझा नहीं, फिर से बताओ। एंटर कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर रहा हूँ तो भी इरेजर की साइज नहीं बढ़ रही है, ब्रैकेट से भी नहीं बढ़ रही है। ओके एनीवे, आपको एकदम कंफर्म पता चले तो मुझे बताना, आई विल वेलकम दैट मूव। मैं भूल गया हूँ, पहले कभी यूज किया नहीं बहुत दिनों से। हाँ सर सिलेक्ट आ रहा है ना ऑप्शन ऊपर व्यू के नीचे होम के पास। सर एक मिनट सर, कंट्रोल प्लस से बढ़ जा रही है। हाँ सर, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके। ओके सिलेक्ट करा। हाँ यहाँ अभी आप हाँ रेक्टेंगुलर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर और अब जो भी आपको इरेज करना है उस पूरे को सिलेक्ट करके कट कर दो। ओके इट्स ए नाइस आइडिया। अदर देन यहाँ जाके तुम बोले क्रॉप करेंगे तो ये गड़बड़ हो रही है। नहीं, डिलीट करिए, करके कट करना था। डिलीट कर दो सर। डिलीट बटन Select दबा कर दो, दो। डिलीट दबा दो। चलो ठीक है, हाँ, थैंक बस हो यू। गया। Okay, so we are here with no point
1001। इसके बाद सिंपली यही तो करना था, 2 की पावर -1 और 0 वाले को छोड़ देते हैं, तो -2 पोजीशन छोड़ देते हैं, इसे लिख देता हूँ 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4। तो अपने को यही तो ऐड करना था, 1/4 डेसिमल के बाद है, बाद में इसको समझ लेंगे। सॉरी 1/4 कैसे हो गया, 2 की पावर -1 तो 2 ही हुआ ना, प्लस 2 जीरोस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये 2 की पावर 4 मतलब 16 लेकिन 1 के नीचे। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो, इसको तो आप जानते हो 0.5 होता है, और ये पूरा भाग लगाना पड़ेगा, तो फिर से पॉइंट लिखोगे, 0 लगाओगे तो नहीं लग पाएगा, 100 के लिए 6 टाइम लगाओगे, 4 आ जाएगा 2 टाइम्स, फिर 8 आ जाएगा तो 80। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5625। तो जिन्होंने 54.5625 आंसर दिया है वो सही है, और आप लोग सीख रहे हो चीज़ों को, या तो आप पहले से जानते हो जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और जिन लोगों ने सीखा इस क्लास के दौरान तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात। ओके, सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जब भी आपको बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी, चाहे वो एक होल नंबर हो चाहे एक फ्रैक्शनल नंबर हो, आप कर पाओगे, ये ऐसा मैं मान के चलूं। Yes, sir. Yes, sir. Now come to the point. यस वेरी गुड। सीखना क्या है, अपने को सीखना है। ये पर्पस क्या होता है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं ठीक है, ये तो डिग्री मिलेगी 4 साल बाद मिलेगी, लेकिन ये 4 साल का जो आपका ये सफर रहेगा, इसमें आप सीखने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो सिर्फ टीचर पे डिपेंडेंट रहोगे तो कितना सीख पाओगे, जितना टीचर सिखाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, यू शुड 1 or 2 steps ahead of your teachers, then only you can learn। क्योंकि अगर आप आगे की चीजें पढ़ते हो सीखते हो तो आप डाउट पूछोगे क्लास में, अदरवाइज रुके मत रहना कि टीचर एक्सप्लेन करेंगे चीजों को तब बताएंगे। आज हमने ये डिस्कस करा है, आगे हम देखेंगे क्या डिस्कस कर सकते हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ ना कि सी प्रोग्रामिंग आप पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वही है। ये सब चीजें आप जानते हो कहीं ना कहीं, लेकिन ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, स्पेशली आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के, उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, आगे हमारा डिस्कशन तो 2-3 क्लास में हम ये नंबर सिस्टम खत्म कर देंगे। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में अपलोड कर दिया करूंगा गूगल क्लासरूम पे, वो आपको प्रैक्टिस के लिए रहेगी और आप इस पे प्रैक्टिस करना। मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम लिखें इसके लिए, how to write a program so that for a given binary number it should output the equivalent decimal number, or whenever I input a decimal number it should give me the binary number। तो ये अभी चूंकि मैंने पढ़ाया है, शुरू नहीं करा है सी प्रोग्रामिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को सोचना शुरू करें। जिनको प्रोग्रामिंग का आइडिया है they can start working on it, don't look for solutions सी में overnight। लिखना जरूरी है क्या सर? सी में लिखना जरूरी है क्या? इस कोर्स के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आप सिलेबस एक बार देखोगे तो ये साफ साफ कह रहा है कि आपको सी प्रोग्रामिंग का कंपोनेंट ही अलग से, तो ऑब्वियस है सी में लिखो। ठीक है, मुझे पाइथन आती है, एक लाइन का काम था उसमें। ठीक है सर, सी में लिखते हैं। हाँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। ओके सर। ओके, तो जो लोग जानते हैं ठीक है, अदरवाइज आप पढ़ना शुरू करो। मैं किताब ऐसे तो रिकमेंड नहीं करता हूँ सी प्रोग्रामिंग के लिए, आपको जो इच्छा हो जहां से आप सीख पा रहे हो सीखो, बट अगर पढ़ना चाहो तो डेनिस रिची से शुरुआत नहीं करनी है अपने को शुरुआत करनी है ई बालागुरासामी की किताब आती है सी प्रोग्रामिंग की, जो कि पीडीएफ के रूप में फ्रीली अवेलेबल भी है। मैं लिंक आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, क्योंकि होस्ट तो नहीं कर सकता हूँ उसको, वो इलीगल होता है। बाकी आपको मैं व्हाट्सएप पे उसका लिंक भेज देता हूँ। सर इसके लिए लैपटॉप की जरूरत है क्या? नहीं, कोड सेफ एक वेबसाइट है, उस पे अकाउंट बना लो और उस पे प्रोग्रामिंग करना शुरू करो, तो आप मोबाइल पे भी कोड लिख सकते हो। बट जिनके पास लैपटॉप है, ऑब्वियस है आपको प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने लिंक भेज दिया, इस पे आपको बालागुरास्वामी की प्रोग्रामिंग इन एनसीसी की किताब मिल जाएगी। ठीक है, सर तो कौन सी डाउनलोड वेबसाइट पे बनाना है अकाउंट? क्या? हाँ, अकाउंट का बनाना है अकाउंट?
ओके, ये भी मैं व्हाट्सएप पे लिख रहा हूँ। ये हमने डिसाइड करा है codesef.com पे आपको। सर एक चीज पूछनी थी हाँ बताओ। सर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर वाला पोर्शन पूरा हटा दिया गया सिलेबस से? हाँ अभी के लिए तो हटा हुआ है, लेकिन मैंने पढ़ने से नहीं रोका आपको। मैंने कहा आप पढ़ो अपने एंड से, अगर कोई डाउट हो तो बियॉन्ड क्लास यू कैन आस्क ऑलवेज। ओके सर। वैसे सर एग्जाम में नहीं पूछेंगे इसको? नहीं, अभी सिलेबस से हटा दिया तो अभी से एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अगर बाद में ऐसा होता है कि ये भी पढ़ाना है तो हम, अभी के लिए तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, एनीवे ये आपकी कोडसेफ का ये इंटरफेस है, आपको रजिस्टर कर लेना है इस पे, ठीक है। न्यू यूजर पे जाके अपनी आरटीयू वाली ईमेल आईडी से ही रजिस्टर करना है इस पे। कोडसेफ पे और अपने सीनियर से टच में रहो कि कोडसेफ पे वो लोग मतलब उन्होंने आरटीयू का अकाउंट बना हुआ है, कॉलेज आरटीयू ही सेलेक्ट करना आप लोग, ठीक है। सर आरटीयू की वेबसाइट ईमेल आईडी जरूरी है क्या इसके अंदर? अब यार पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हो, आरटीयू ने एक ईमेल आईडी आपको दी है तो नहीं उसको नहीं यूज सर, पहले से बना हुआ है कोडशेफ का, तो उसमें मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है जैसे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बट है जो ना? लोग नहीं है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जुड़े आरटीयू वाली ईमेल आईडी से। सर एक चीज और पूछनी है, ये तो हमें 4 साल के बाद हमारी ईमेल आईडी तो हमसे ले ली जाएगी एक तरीके से। आपको टाइम दिया जाता है, मतलब कम से कम 3 महीने का टाइम मिलेगा कि आप इस चीज को जो भी है अपने मेल को कहीं पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर पाओगे। नहीं तो सर जैसे कि कोडशेफ की आईडीज तो है ना अपने, जैसे कि कंपनीज आती है तो हमारी कोडशेफ के रैंक वगैरह देखते हैं, तो उसके लिए तो अगर अपनी पर्सनल चलती है तो उसमें चेंजेस वगैरह करना मुश्किल पड़ता है ना, तो वो पर्सनल चला सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। कोई दिक्कत नहीं है उस पर, कोई ओके दिक्कत सर। ओके सर। कोई दिक्कत। ये प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन कंपाइलर्स कुछ लोग अगर मोबाइल से करना चाहें तो कर पाएंगे, बाकी जिनके पास डेस्कटॉप है वो जीसीसी कंपाइलर इंस्टॉल करें जीडीबी की मदद से और उस पे कोड करें। खैर उसकी वीडियो क्लास में स्टूडियो कोड हो जाएगी आराम से। अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, मैं लैब में ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं लैब की चीजें अभी डिस्कस करके क्लास का टाइम खराब नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है, बाकी इसको तो देखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बता दूंगा। हाँ मैं क्या कह रहा था कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वो मैं डेली अपलोड कर दिया करूंगा, वो आपके लिए है, आप करोगे तो आप एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और सीखने के लिए भी वो जरूरी है। ओके सर। और आज की तो मैंने अटेंडेंस ऐसे नहीं ली है, बट नेक्स्ट क्लासेस ऑनवर्ड्स बाय डिफॉल्ट अटेंडेंस रिकॉर्डिंग मतलब एक एक्सटेंशन आता है, उसको करूंगा इंस्टॉल। तो आप सीखने के लिए तो आप वो लॉग इन करो क्लास के टाइम पे, मोस्ट ऑफ द पीपल शुड ज्वाइन क्लासेस। और कोई डाउट है तो पूछ लो, अगले 5-10 मिनट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं चीजों। हाँ क्या स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था वो स्टार्टिंग में कहाँ से तुमने देखा? बाइनरी से हमने डेसिमल से बाइनरी यही आज डिस्कस किया है और कुछ खास डिस्कस करा नहीं है, और जो कि हमने बीच में सारी चीजें सेम एक्सप्लेन भी करी। थर्सडे वाली क्लास में अपन जो ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल और फिर ऑक्टल से बाइनरी और ऑक्टल से डेसिमल कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। और लास्ट क्लास जो होगा फिर, हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि कुछ टीचर्स हमें नोट्स दे रहे हैं, तो आपके नोट्स जो आप हमें प्रोवाइड कराओगे, हम खुद बनाएंगे उसको? नोट्स दे देता हूँ मैं, जो पीपीटी तुम देख रहे थे तो वो मैं अपलोड कर देता हूँ, यहाँ से मिल जाएगी तुम्हें। यस सर। सर एक और चीज पूछनी है सर, अभी जैसे कि हम आरटीयू में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो अगर मुझे किसी को बताना हो कि मैं आरटीयू में पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह कुछ तो मिलेगा ना हमें? तुम्हारे पास आरटीयू की ईमेल आईडी है जो कि सर एक ऑफिशियल वो ईमेल नहीं आईडी। सर, अभी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का भी वेबिनार हुआ था, तो उसमें हमें गिटहब के बारे में कुछ बताया, और उसके अंदर हमें गिटहब का फ्री वर्जन मिल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, हर किसी को मिलता है। तो उसके अंदर वहाँ पे हमें ना 4 साल के लिए, जब तक हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तक वो हमें फ्री प्रोवाइड कराएंगे गिटहब की सारी सर्विसेज। तो उसके अंदर हमें कॉलेज से रिलेटेड कुछ ऐसे, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड में मेरी फोटो आ गई, नाम आ गया, R2 का नाम आ गया, और उसमें डेट सन आ गया कि ये 2020 से पढ़ रहा है या 2021 से पढ़ रहा है, तो वो तो आईडी कार्ड जब भी बनेंगे तो पता चल जाएगा, अभी प्रोसेस में ही है।
वो तो नहीं, क्योंकि सर उसमें ये है ना कि उसमें टाइम पीरियड दे दिया शुरुआती, जैसे कि अब साल शुरुआत होता है तो उस समय पे ये ज्वाइन होते हैं, तो इसके आगे ट्रैक कर सकते हैं। एडमिशन लेटर तो मिला था ना सर उसमें फोटो नहीं है, उसमें फोटो नहीं है, प्रॉब्लम यही है, वरना मैं अलॉटमेंट लेटर ही लगाने वाला था उसमें। अच्छा, तो खुद से एडिट करके अलॉटमेंट लेटर के कॉर्नर पे फोटो चिपका के दे दो उन्हें। देखता हूँ, ये करता हूँ, क्योंकि मेरे एक बार रिजेक्ट हो चुका है इसलिए। ट्राई विद दैट ट्रिक, इफ इट वर्क्स वेल एंड गुड। ओके सर, मैं चेक करता हूँ फिर एक बार इसको। ओके देन ये मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको, जो पीपीटी मैंने बनाई थी। बनाई क्या थी, मैंने किसी यूनिवर्सिटी से लिया था, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि अपन एडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम्स मैं अपलोड कर दूंगा, वर्क ऑन दोज प्रॉब्लम्स, ओके। So every communication, if you want, we have a WhatsApp group, you have my email IDs and you have आप Google Classroom जो है उस पे कुछ डिस्कशन आपको करना हो तो वहाँ पे फोरम क्रिएट करके कर सकते हैं, ठीक है। So start learning. See you in the next class, which is on Thursday. Thank you for joining. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. तो सर